Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Students, hope you all will be fine. Stay home, stay safe, be careful. It's third chapter, that is theories of covalent bonding and shapes of molecule. In this chapter, we will study about the structure and the shape and nature of covalent bond and describe the shapes of molecules. Covalent bond was described by Lewis. The formation of covalent bond as a shear pair of electrons between two atoms does not explain the molecules. Similarly, many other properties like bond energy, relative strength, and paramagnetic character is also not explained by the Lewis concept or Lewis covalent bond. However, modern theories of chemical bonding not only explain most of our experimental observations but also allow us to predict the shapes and geometries of molecules. These theories can also be used to predict many physical and chemical properties. अब मॉडर्न थ्योरीज कौन सी हैं जो हमें एटम की मॉलिक्यूल की बॉन्डिंग स्ट्रक्चर नेचर प्रॉपर्टीज़ उनकी शेप वाजे करती हैं। तो वो प्रॉपर्टीज़ जो हम यूज़ करते हैं टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड एंड इन द डिटर्मिनेशन ऑफ शेप्स ऑफ molecule. These theories are whisper theory, valence shell electron pair repulsion theory, valence bond theory VBT, molecular orbital theory MOT. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी, विस्पर थ्योरी. इट वाज सजेस्टेड बाय सेडविक हर्बर्ट पॉल, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, 1940. According to this theory, the shape of molecule or ion depends upon the number of shared pair as well as lone pair of electron around the central atom of molecule and ion. कोई भी मॉलिक्यूल या आयन अगर हमारे पास है तो उसकी शेप हमें कैसे पता चलेगी? उसकी शेप हम डिस्क्राइब करेंगे विद द हेल्प ऑफ शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि जो सेंट्रल एटम है उस सेंट्रल एटम से कितने एटम बॉन्डेड हैं, उस सेंट्रल एटम के कितने शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं और कितने लॉन पेयर हैं. इनकी अरेंजमेंट से हम डिटरमाइन करेंगे शेप ऑफ मॉलिक्यूल. द बेसिक assumption of whisper theory is the electron pairs around the central atom are arranged in space in such a way that they keep as far as apart as possible so that there is minimum repulsion between them. So the arrangement of electron pair in this manner gives minimum energy and minimum stability of the molecule or ion around an central atom. So electron dot structure fails to reflect the three-dimensional shape of molecule. Whisper theory, valence electron pair and repulsion theory explain the or predict the exact shape of the molecule. According to whisper theory, the repulsion between electron pair cause molecular shape to adjust so that the valence electron pair stay as far apart as possible. विस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन की रिपल्जन है वो मॉलिक्यूल्स की शेप को डिफ़ाइन करती है या मॉलिक्यूल की शेप को एडजस्ट करती है, क्योंकि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉन पेयर हैं, और उनकी रिपेल्जन से एक स्पेसिफिक ज्योमेट्री बनती है किसी भी मॉलिक्यूल की जिससे हमें उस मॉलिक्यूल की शेप का पता चलता है. Now in whisper theory, in predicting molecular shape, it may be useful to start with an electron dot structure. हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से ही स्टार्ट करेंगे और उससे ही समझने की कोशिश करेंगे विस्पर थ्योरी को. द शेप ऑफ मॉलिक्यूल इज डिटरमाइंड बाय द रिपल्जन बिटवीन ऑल ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल. Electron pair in the valence shell of central atom repel each other and align themselves to minimize this repulsion. जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन हैं वो सब एक दूसरे को रिपेल करेंगे और रिपेल करने के बाद एक इस कंडीशन पर लाइन हो जाएंगे कि इनके दरमियान रिपल्जन मिनिमम हो जाए और फिर वही उनकी स्ट्रक्चर या वही उनकी ज्योमेट्री होगी. अब रिपल्जन स्ट्रेंथ है क्या? अगर हम सेंट्रल एटम की बात करें तो सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द उसके सराउंडिंग में उसके वैलेंस शेल में शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होंगे जो दूसरे एटम के साथ बॉन्डेड होंगे.
लॉन पेयर्स भी होंगे। तो रिपल्जन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, लॉन पेयर और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन के दरमियान होगी। तो अब इसके कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं? लॉन पेयर हो सकता है, शेयर पेयर हो सकता है, और शेयर पेयर एक या एक से ज़्यादा भी हो सकता है। तो अगर हम रिपल्जन स्ट्रेंथ की बात करें तो लॉन पेयर की रिपल्जन सबसे ज़्यादा होगी, उससे कम होगी लॉन पेयर एंड बॉन्ड पेयर की रिपल्जन, और बॉन्ड पेयर की रिपल्जन सबसे कम होगी। और यही बेसिकली चेंज ऑफ रेगुलर ज्योमेट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, ये तमाम रिपल्जन्स। अब लॉन पेयर की रिपल्जन क्यों ज़्यादा है, बॉन्ड पेयर की रिपल्जन क्यों कम है? बिकॉज लॉन पेयर सिर्फ एक न्यूक्लियाई से अट्रैक्टेड है। लॉन पेयर वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो किसी और एटम से बॉन्डेड नहीं है, उसे हम कहते हैं लॉन पेयर। वो सिर्फ एक एटम के साथ बॉन्डेड है, उसका न्यूक्लियाई सिर्फ एक है, तो उस पर जो इन्फ्लुएंस होगा वो सिर्फ एक न्यूक्लियाई का होगा। दैट्स वाई उसके पास रिपल्जन के लिए बहुत ज़्यादा एरिया है। अगर हम पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करें तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड है बिटवीन टू न्यूक्लियाई। अब वो उन दो न्यूक्लियाई से दूर नहीं जा सकते, उन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे दोनों न्यूक्लियाई का इन्फ्लुएंस है, जिसकी वजह से उनकी रिपल्जन कम हो जाती है। अब एप्लीकेशंस की बात करते हैं हम। एप्लीकेशंस ऑफ विस्पर थ्योरी: द मॉलिक्यूल एंड आयन विल बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट इन देम, आइदर बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग। कोई फ़र्क नहीं पड़ता एटम के इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग है या नॉन बॉन्डिंग, दोनों ही रिस्पॉन्सिबल हैं मॉलिक्यूल की शेप को डिटरमाइन करने में। सो दोनों का इन्फ्लुएंस होगा या दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होंगे एटम की मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने में। कंसीडर द सेंट्रल एटम ए, बॉन्डेड एटम इज और बी, लॉन पेयर इफ प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल इज रिप्रेजेंटेड बाय ई। अब हम जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए जो है वो हमारा बॉन्ड पेयर है, ए हमारा सेंट्रल एटम है, बी हमारा बॉन्ड पेयर है, और ये हमारा लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम शो करेंगे। अब व्हेन यूजिंग विस्पर थ्योरी टू प्रिडिक्ट मॉलिक्यूलर शेप, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड आर व्यूड एज सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, वी विल कंसिडर इट एज द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, so in predicting molecular shape, it may be useful to start with an electron dot structure. The electron dot structure shows both the bonding and non-bonding pair of electron around the central atom. हम डॉट पेयर यहाँ पे इसलिए यूज़ करेंगे बिकॉज डॉट पेयर से हमें बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की इनका डिफरेंस फाइंड आउट हो जाएगा कि ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और इससे हम इजीली इनकी रिपल्जन शो करके इसकी डायग्राम या इसकी स्ट्रक्चर ज्योमेट्री को डिटरमाइन कर सकेंगे। अब हम इनकी शेप्स की बात करेंगे कि किस टाइप की शेप होंगी। शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल कंटेनिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के गिर्द कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं, वो बॉन्डिंग हैं या वो लॉन पेयर्स हैं। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं AB2 टाइप। हम शो कर रहे हैं सेंट्रल एटम को, बी बॉन्डेड एटम। AB2 टाइप मीन सेंट्रल एटम के साथ दो एटम बॉन्डेड हैं। यहाँ पे ई नहीं है, इट मीन्स देयर इज़ नो एनी लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमने इसके एग्जांपल के लिए ले लिया बेरिलियम क्लोराइड। इट हैज़ टू बॉन्ड पेयर बट नो लॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम। तो इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा? अगर हम इसकी थोड़ी सी ज्योमेट्री को डिस्कस कर लें तो सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द दोनों साइड एक एक एटम बॉन्डेड है, क्लोरीन एटम यहाँ पे हमने सपोज किया है। तो एक एक एटम जो बॉन्डेड है और सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द कोई भी और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, लॉन पेयर भी नहीं है और बॉन्ड पेयर भी नहीं है, तो दोनों की रिपल्शन इक्वल होगी। जब दोनों दूसरे को रिपेल करेंगे तो इनकी जो ज्योमेट्री होगी, दोनों साइड से जब इक्वल रिपल्शन आएगी तो इनकी ज्योमेट्री एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, जिस शेप को हम कहेंगे लीनियर, और इसका बॉन्ड एंगल होगा 180 डिग्री। तो AB2 टाइप शेप के लिए एंगल होगा 180 डिग्री और इसकी शेप होगी लीनियर। AB4 मीन्स सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द 4 एटम बॉन्डेड हैं एंड देयर इज़ नो एनी लॉन पेयर। सो इसके जो 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं जो बॉन्डेड हैं वो एक दूसरे को पुश अवे करेंगे, रिपेल करेंगे, और जब ये रिपेल करेंगे तो इनकी जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होगी वो एंगल फॉर्म करेगी 109.5 डिग्री का, और इसकी स्ट्रक्चर बनेगी टेट्राहेड्रल। यहाँ एक चीज़ जो समझने की है, दिस 2 डायमेंशनल ड्राइंग डज नॉट शो अ 2 representation of the chemical arrangement।
ये जो यहाँ पे हमें 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर मिल रही है जिसमें हमने एक कार्बन को 4 हाइड्रोजन से बॉन्डेड फॉर्म किया है, इस स्ट्रक्चर के मुताबिक इसका एंगल बनता है 90 डिग्री। सो दिस स्ट्रक्चर इज़ रॉन्ग। हम 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर शो करते हैं और AB4 टाइप की 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होगी ये, जिससे हम कहते हैं टेट्राहेड्रल। 1 2 3 4 4 बॉन्डेड एटम हैं सेंट्रल एटम के साथ, और इस 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के 4th एंगल इक्वल होंगे और वो एंगल होंगे 109.5 डिग्री। सो AB4 टाइप की स्ट्रक्चर क्या होगी, शेप क्या होगी, टेट्राहेड्रल, और बॉन्ड एंगल होगा 109.5 डिग्री। अब हम बात करते हैं AB3 टाइप की। AB3 मीन्स 3 एटम्स जो बॉन्डेड हैं सेंट्रल एटम के साथ, एंड आल्सो देयर इज़ नो एनी लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें भी रिपल्जन इक्वल हो जाएगी। जब इक्वल रिपल्जन हो जाएगी तो तीनों एंगल इक्वल होंगे और तीनों एंगल होंगे 120 डिग्री के, एंड द शेप विल बी प्लानर ट्राइंगुलर। यहाँ हमने दोनों एग्जांपल शो किए हैं, डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड की। वी विल कंसीडर द सेम एज द बॉन्डेड एटम, आइदर दिस इज सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। सो अगर AB3 टाइप मॉलिक्यूल है तो उसका बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्री और उसकी शेप होगी प्लानर ट्राइंगुलर। ट्राइंगल बना होगा और वो ट्राइंगल एक प्लान पर होगा। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स भी इसकी यहाँ गिवन है। अब हम बात कर रहे हैं AB3E टाइप, मीन्स यहाँ पे अब एक लॉन पेयर भी आ गया। सेंट्रल एटम के साथ 3 बॉन्डेड पेयर और एक लॉन पेयर अटैच्ड हैं, जिसकी हमने एग्जांपल यहाँ पे लिए है अमोनिया। तो इस शेप को हम कहते हैं, इसकी जो शेप बनेगी वो होगी ट्राईएंगुलर पायरामाइडल। पायरामाइडल शेप होगी इसकी, और इसका एंगल अब डिक्रीज़ हो जाएगा थोड़ा सा, 109 से ये आ जाएगा 107.5 डिग्री पे। अब इस पर रिपल्जन क्यों हो रही है, हमने स्टार्ट में ही पढ़ा था। सबसे ज़्यादा रिपल्जन होगी लॉन पेयर की, उससे ज़्यादा रिपल्जन होगी लॉन पेयर बॉन्ड पेयर, और उससे भी कम रिपल्जन होगी बॉन्ड पेयर की। अब यहाँ पे बॉन्ड पेयर लॉन पेयर की रिपल्जन भी है और बॉन्ड पेयर की रिपल्जन भी है। तो ये लॉन पेयर इन तीनों को रिपेल करेगा और इसकी शेप कुछ पायरामाइडल टाइप बन जाएगी, पायरामाइड जैसी हो जाएगी, और स्ट्रक्चर को फिर हम कहेंगे, शेप को हम कहेंगे ट्राईएंगुलर पायरामाइडल। दिस इज AB3E टाइप। यहाँ पे हमने एक वाटर की स्ट्रक्चर शो की है जो बेसिकली 2 लॉन पेयर को शो कर रही है, जिसमें 2 लॉन पेयर एंड 2 बॉन्ड पेयर हैं, जिसे हम AB2E2 टाइप भी कह सकते हैं। अब इसमें 2 लॉन पेयर हैं, वो ऑक्सीजन के साथ, और वो रिपल्जन क्रिएट कर रहे हैं बॉन्डिंग हाइड्रोजन्स के साथ, और लॉन पेयर की रिपल्जन ज़्यादा होगी, फिर लॉन पेयर बॉन्ड पेयर की रिपल्जन ज़्यादा होगी। तो जो 2 हाइड्रोजन है वो बैंड हो जाएंगे और इसकी शेप कुछ V टाइप बन जाएगी। ये अगेन वही स्ट्रक्चर वाटर की यहाँ पे डिस्क्राइब की है, AB2E2 टाइप। V शेप होगी, बैंड हो जाएगा बिकॉज ऑफ द रिपल्जन ऑफ दीज 2 लॉन पेयर रिपल्जन, और अब इसका एंगल मज़ीद कम हो जाएगा और हो जाएगा 104.5 डिग्री पर। सो वाटर मॉलिक्यूल बैंड हो जाता है 104.5 डिग्री तक बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लॉन पेयर रिपल्जन। यहाँ पे 2 लॉन पेयर हैं जो एक दूसरे को भी रिपेल करेंगे और बॉन्ड पेयर को भी रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से बॉन्ड पेयर मज़ीद बैंड हो जाएगा और V शेप फॉर्म करेगा। AB5 टाइप स्ट्रक्चर ट्राइगोनल बाई पैरामाइडल। अब यहाँ पे बाई पैरामाइडल है मीन्स 2 पैरामाइड बनेंगे, और ट्राइगोनल है मतलब मीन्स ट्राइंगुलर टाइप शेप होगी इसकी। एक एटम 5 बॉन्डेड एटम्स के साथ, 5 एटम के साथ बॉन्डेड होगा, 1 2 3 4 5, और इसकी शेप कुछ इस टाइप की बनेगी, जिसपे कोई एंगल इसका होगा 90 का और कोई एंगल इसका होगा 120 का, और ये शेप कहलाएगी ट्राइगोनल बाई पैरामाइडल। यहाँ पे विस्पर चार्ट हम गिवन है जो इसमें फ्यू एग्जांपल्स गिवन है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स की। अब अगर हम बात करें टोटल डायमेंशन, कितनी डायमेंशन है, 1 डायमेंशन में होगा लीनियर स्ट्रक्चर होगी AB, जिसमें बॉन्डेड एटम सिर्फ एक है। अगर सिर्फ एक बॉन्डेड एटम है तो ऑफ कोर्स इसकी शेप लीनियर ही होगी, लाइक एग्जांपल इसकी गिवन है H2। AB2 के लिए हम कहेंगे ये भी लीनियर है, लेकिन इसकी डायमेंशंस 2 हैं, बॉन्डेड एटम्स के साथ 2 हैं, लॉन पेयर एक भी नहीं, और इसकी स्ट्रक्चर भी लीनियर होगी लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। दोनों ऑक्सीजन कार्बन के दोनों तरफ बॉन्डेड होंगे, लीनियर शेप बनाएंगे, 180 डिग्री एंगल होगा इसका। अब लीनियर के लिए हम एक और ABE टाइप, जिसमें एक बॉन्ड पेयर और एक लॉन पेयर हो, तो इसकी शेप भी लीनियर ही होगी। जो बॉन्ड पेयर होगा वो एक साइड होगा और जो लॉन पेयर होगा वो दूसरे साइड होगा। साइनाइड इसकी एग्जांपल है CN9।
अब हम बात कर रहे हैं ट्राइगोनल प्लानर की। तो ट्राइगोनल प्लानर शेप के लिए हमें 3 एटम्स रिक्वायर होंगे, AB3 टाइप या AB2E टाइप या ABE2 टाइप के एटम्स इसके होंगे। AB3 में बॉन्डेड एटम 3 होंगे, AB2 में बॉन्डेड एटम 2 हैं और AB में बॉन्डेड एटम E1 है। इसमें कोई भी लॉन पेयर नहीं है, इसमें एक लॉन पेयर है और इसमें 2 लॉन पेयर हैं। अब अगर लॉन पेयर कोई भी नहीं है, 3 एटम बॉन्डेड है सेंट्रल एटम के साथ, तो शेप बनेगी ट्राइगोनल प्लानर, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर 2 बॉन्डेड एटम है और एक लॉन पेयर है तो ये बैंट हो जाएगा लाइक O3, और ये इसकी शेप जो होगी वो बैंट होगी। अगर हम ABE2 टाइप की बात करेंगे तो इसकी शेप भी लीनियर होगी और इसमें 2 लॉन पेयर्स होंगे जो उसे बैंट कर देंगे, जो रिपल्जन शो करेंगे, और इसकी शेप लीनियर होगी। O2 इज एग्जाम्पल। अब अगर हम टेट्राहेड्रल शेप की बात करें तो इसमें 4 डायमेंशंस होंगी। AB3E टाइप में 3 बॉन्डेड एटम और एक लॉन पेयर है। ट्राइगोनल पैरामाइड शेप होगी लाइक अमोनिया, जो हम डिस्कस कर चुके हैं इन डिटेल। और अगर हम AB2E2 टाइप की बात करेंगे तो इसमें 2 लॉन पेयर एंड 2 बॉन्ड पेयर होंगे, जिसकी शेप बैंट होगी लाइक वाटर, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब है ABE3 टाइप। ABE3 टाइप की स्ट्रक्चर क्या होगी, इसमें बॉन्ड पेयर 1 होगा और लॉन पेयर 3 होंगे। इसकी शेप लीनियर होगी लाइक क्लोरीन। तो ये वो स्ट्रक्चर्स हैं जो टेट्राहेड्रल से ड्राइव हो रही हैं, या टेट्राहेड्रल रिलेटिव मॉलिक्यूल्स की ये मॉलिकुलर शेप्स हैं, ज्योमेट्रीज की मज़ीद शेप्स हैं। यहाँ गिवन है फ्यू एग्जांपल्स। यहाँ पे हम एक्स शो कर रहे हैं बी से, ये मुझे एक इमेज मिल गया था तो मैंने वो यहाँ पुट कर दिया है। इसमें ए सेंट्रल एटम है और एक्स जो है वो बॉन्डेड एटम है। AX2 में स्टेरिक नंबर 2 है, लीनियर शेप होगी लाइक गिवन है 180 डिग्री। और अगर हम AB3 टाइप लाइक AX3 टाइप की बात करेंगे तो ट्राइगोनल है, 120 डिग्री का एंगल होगा, BF3 एग्जाम्पल है। AX4 की बात करेंगे तो टेट्राहेड्रल है, 109.5 डिग्री एंगल होगा और CF4 इस एग्जाम्पल गिवन है। या और उसके बाद अगर हम बात करें AX5 की तो ट्राइगोनल बाई पैरामाइड होगा, PF5 सॉरी एग्जाम्पल गिवन है। इसमें एक एंगल इसका होगा 90 का और एक कुछ एंगल इसके होंगे 120 के और कुछ होंगे 90 के, जो और शो करेंगे ये शेप ट्राइगोनल बाई पैरामाइडल। AX6 टाइप की जो एग्जांपल होगी, इसमें 6 एटम बॉन्डेड होंगे सेंट्रल एटम के साथ और ये शेप शो करेगा ऑक्टाहेड्रल, जिसमें एंगल अगेन 90 डिग्री का होगा 2 बॉन्ड के दरमियान। और फिर इसकी एग्जांपल है SF6। कुछ लिमिटेशंस का डिस्कस कर लेते हैं विस्पर थ्योरी की। जिस तरह डिफरेंट थ्योरीज आती गई तो उनमें कुछ लिमिटेशंस, कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं। तो विस्पर थ्योरी के ड्रॉबैक्स या लिमिटेशंस हैं, इट फेल्स टू प्रेडिक्ट द शेप ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ को प्रेडिक्ट नहीं कर सका था ये, लाइक CH4 एंड NH4 आयन एंड ट्रांजिशन मेटल्स कंपाउंड, ट्रांजिशन मेटल को भी की स्ट्रक्चर भी ये डिटरमाइन नहीं करता। दिस मॉडल डजंट टेक रिलेटिव साइज ऑफ सब्सटीट्यूएंट्स, unable to explain atomic orbital overlap। ये प्रैक्टिस के लिए कुछ आपको स्ट्रक्चर्स दी गई हैं जो आप ड्रॉ करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। मैंने चूँकि फेडरल बोर्ड की फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की बुक फॉलो की है, तो उस बुक में पेज नंबर 55 to 59 में स्ट्रक्चर्स, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स गिवन है विस्पर थ्योरी की। आपको ड्रॉ करनी है स्ट्रक्चर ज्योमेट्री समझने के लिए, शेप समझने के लिए, एंगल समझने के लिए। आपको प्रैक्टिस के लिए एक होमवर्क दिया जा रहा है जिसमें आपको ड्रॉ करनी है अमोनिया की स्ट्रक्चर, एंगल गिवन है 107। वाटर स्ट्रक्चर फाइंड करेंगे, एंगल गिवन है 105। कार्बन डाइऑक्साइड 180 एंगल है, मीथेन 109.5 डिग्री एंगल है एंड बोरॉन फ्लोराइड BF3 120 डिग्री एंगल है। एंगल्स गिवन है, आपने इसकी स्ट्रक्चर और फिर शेप का नाम लिखना है। दिस इज़ अबाउट द विस्पर थ्योरी। सो नेक्स्ट में हम कंटिन्यू करेंगे डिफरेंट थ्योरीज। होप आपको ये अच्छा समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक, कीप डूइंग हार्ड वर्क। अल्लाह हाफिज़।